साथ, तभी आप लोगों को भी समझ आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं देना। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्री वेबिनार फॉर ऑल ऑफ यू, सो इसका पूरा आनंद उठाइए। एंड इन द एंड आवर इंटेंशन इज दिस ओनली, दैट आप अपनी जनरल रूटीन में अगर थोड़ा सा भी, इवन 10%, वैसे तो ज्यादा पाएंगे, बट अगर 10% भी रिलीफ मिल गया ना, तो आपका तो काम बन गया ना। आपको 60 मिनट में 10% का रिलीफ मिल गया, बस बात खत्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक सो है, शुरू करते हैं उज्जवल। टू ओके। स्टार्ट विद, अभी आप हमें पहले व्यूअर्स को बताइए दैट व्हाट इज एंजाइटी एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइटी? या सो सी, आप सभी ने स्ट्रेस तो सुना होगा, सुना होगा है ना, कि स्ट्रेस हो रहा है, मैं भी परेशान हूं। तो आज हम बात करते हैं एंजाइटी की, क्योंकि एंजाइटी एक ना थोड़ा बड़ा वर्ड है, भारी वर्ड है, और शायद से ज्यादा समझ नहीं भी आता है। तो आज मैं आप लोगों को एक स्लाइड भी दिखाऊंगा जो बहुत ब्यूटीफुली आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देगी। पर पहले जानते हैं कि देखिए, एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल। स्ट्रेस को समझिए, स्ट्रेस क्या होता है? मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे ए चाहिए, और मुझे अभी, मैं अभी कहां पर हूं, मैं बी पर हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली जाना है और मैं अभी करनाल पहुंचा हूं। मेरी डेस्टिनेशन का बीच का जो गैप है, कोई भी जो भी हमारे को दो जगहों पे दूर रखता है, इसके बीच की चीज स्ट्रेस जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10,000 रुपए कमाने थे, मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूं, पर कमाने कितने थे? 10,000। तो अब ये जो 5,000 की कमी है, ये मेरे लिए क्या जनरेट कर रहा है? स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। सिमिलरली, बच्चे की शादी करनी थी, शादी परसों है, और आज की तारीख यहाँ है, इसके बीच का जो गैप है, ये आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है या नहीं करता है, राइट? So yeah, some participants are also requesting me to speak in English. So I would love to, because I naturally go in that only. So I'll speak in both languages so that whosoever understands whatever, it is comfortable for them. So any difference between Perfect. where you are and where you want to be, the gap between that generates stress. Okay? Right. Now, when this stress becomes in different areas, when this stress increases, for example, एक stress है बच्चे का, ऐसे गैप वाला, एक है जॉब का, एक आ गया फॉर एग्जाम्पल मेरी हेल्थ का, एक आ गया बायोलॉजिकल रीजंस का, मे बी आई हैव सम फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मे बी देर आर सम मेडिसिन दैट आई एम टेकिंग, and then there is something in the wrong in the environment, say for example nationally some political issues going on in India. Similarly, some psychological issues going on. So many things, biological, sociological, environment based, psychology based, all of these things when come together, they give rise to anxiety. And while anxiety is normal, when it crosses its threshold मतलब नॉर्मल सीमा का जब वो परेख क्रॉस कर उठती है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है, वो आपकी बीमारियों का कारण बन जाता है, वो आपकी चिंता का कारण बन जाता है। दैट बिकम्स द रूट कॉज ऑफ योर any kind of either emotional issue, physical issue, or as we understand it today, as mental health issue, right? So are you clear with this, that what I tried to explain? Now I'll also, I'll show you a very beautiful model that you can relate. This is called as this biological, psychological, and social model. Okay. Am I audible, Pujadi? I'm receiving some chats that probably. I can hear you very clearly. I think people who are not able to hear you have to, increase their audio, or they can connect back with the Yeah, link. Yeah. probably that. Okay. Namaste, this is the backend team. Yeah. This is for all the people who cannot hear Ujjwal because you have not connected your audio. So either you can leave the meeting and come back and connect your audio, because we can see many people's audio is not connected. So unless you connect your audio, you'll not be able to hear what the speaker is speaking. So Right. I don't know if they've heard this now, but we'll Maybe you type can it in the write it chat in again. the Thank you. chat box. Okay. So when this happens, it becomes anxiety. And if we understand anxiety psychologically, so anxiety disorder is basically, it has few categories. Something called as GAD. If you have been to a doctor, you will understand that, they might have called that you have GAD. So what is GAD? इसको बोलते हैं general anxiety disorder.
Under anxiety disorder, psychology also considers, as per ICD-10, you know, even OCD, obsessive compulsive disorder, comes under anxiety. Social anxiety, आप शादी में जाएंगे, किसी की पार्टी में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, इवन लोगों की भरी सभा में जाएंगे, घबराहट शुरू हो जाएगी, चिंता होने लग जाएगी. Social anxiety also comes under anxiety disorder. Specific phobia related anxiety. So for example, गाड़ी चलाने का डर है, डॉग्स को देख के डर लग जाता है, एरोप्लेन में बैठते ही कुछ हो जाता है, जिसको हम बोलते फियर है. हम क्या बोलते हैं? फियर लग रहा है. वो फियर नहीं है, वो एंजाइटी है. So, there are so many things. So we'll understand that what are the causes of this, then how does it happen? So this is a very beautiful, it's not a exclusive model ki yahi bilkul reasons hain, but these are the major things, as I shared, that one can be biological. For example, आपकी physical health ही ठीक नहीं है, आपका immune response ही अच्छे से generate नहीं हो पा रहा है, आपकी body, physically अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही है. There may be some genetic issue, जिसको हम स्पिरिचुअली लेटर समझेंगे ट्रांस जेनरेशनल इशू, कि मम्मी को भी थी, उनकी मम्मी को भी थी, अब मुझे भी हो गई है. इसी तरीके से सोशल एनवायरमेंटल, घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा है, कि कोविड की इशू से बिजनेस बंद हो गए हैं, स्कूल में किसी ने कह दिया, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, तू मोटा है, तू काला है, तू पतला है, तू ऐसा है, तू वैसा है. एनवायरमेंट बेस्ड इश्यूज हो गए, या फिर साइकोलॉजिकल बेस्ड इश्यूज हो गए. फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन, अभी कोई कुछ भी बात कर रहा होता है, आपको बस यही लगता है सब आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो अब वो आपको कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, बट आपको लगता है कि आप ही की चुगली हो रही है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्पीक इल ऑफ यू, एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्पीक नेगेटिव ऑफ यू. सो दैट इज वेयर द साइकोलॉजिकल इशू कम्स इन. And where these three circles start combining, as they come together, it leads to some mental health issue, which for today we are considering as anxiety. तो फिर क्या करा जाए? So पहले ये समझते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि एंजाइटी कैसी दिखती है, हमें कैसे पता चले कि हमें एंजाइटी है या नहीं. तो मैं पहले 2 मिनट में बताता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने एंजाइटी को एक्सपीरियंस करा है. So देखिए, While anxiety has many symptoms, मैंने सिर्फ 5 यहाँ पे लिखे हैं जो मोटे, which are the main symptoms. So you can have physical, you can also have psychological symptoms of anxiety. So physical, दिल धड़कने लग जाएगा, heart is pounding, कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए. Flushing, एकदम से sweat flushing and पूरी बॉडी लाल हो जाएगी, ऊपर नीचे सांसें चढ़ जाएंगी, घबराहट हो जाएगी, hot flushes. हेडेक्स, सर भारी रहेगा, सर में दर्द हो जाएगा, पता नहीं, you'll come to us and you will say सर में दर्द रहता है सारा टाइम. रेस्टलेसनेस, सारा टाइम रेस्टलेस, सोना है, रात को नींद ढंग से नहीं आ रही है बिकॉज यू आर रेस्टलेस, सुबह उठ रहे हो फ्रेश नहीं उठ रहे हो बिकॉज यू आर रेस्टलेस. या एक्सट्रीम स्वेटिंग, पसीने आते रहेंगे फालतू में. These can be some. Again, I am saying these are not all. You might have something else. These are just some of the major ones. Then psychological. So usually जब आप लोग हमें बताते हैं ना कि एंजाइटी हो रही है, मोस्टली पहचान फिजिकल सिम्टम्स से होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज सब नहीं समझते हैं. बट अगर आप समझते हैं, सो एक्सेसिव वरी, बात सिर्फ ये होएगा कि फॉर एग्जाम्पल खाना 5 मिनट लेट हो गया, बट आपके पसीने छूटने लग जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे, अब क्या होगा, लड़ाई हो गई, ये हो गया, ऐसे किसी ने बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया. कैन बी दैट. ओवर थिंकिंग, फटीग, सारा दिन आप थके रहते हो. सी, काम करके एग्जॉस्ट होना इज नॉर्मल, बट यू आर इन जनरल इन फटीग, योर मेंटल कैपेसिटी इज गेटिंग ड्रेन्ड. विविड ड्रीम्स, समझ ही नहीं आ रहा है, रैंडम ड्रीम्स भरी जा रहे हैं, अलग अलग सपने जिनका कोई सर पैर नहीं है, सारा टाइम चलते रहते हैं. बेसिकली इंक्रीज्ड चैटर ऑफ माइंड. देन डिक्रीज्ड मेमोरी. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, आजकल तो कुछ याद ही नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? बिकॉज वी आर अनेबल टू सी थिंग्स द वे दे आर, बिकॉज ऑलरेडी माइंड कुछ और ही देखी जा रहा है, कुछ और ही सोची जा रहा है, कुछ और ही सुनी जा रहा है. That is where it happens, or reduced concentration. And then there are many other factors as well. So these are just the general symptoms of anxiety, right? So now we'll have to understand that what can we do about them. So अब आप मुझे बताएंगे, have you experienced anxiety wherever you are watching me? You can maybe write it in the comment section on Facebook, or if you're on Zoom, you can write it on the chat box. Have you experienced anxiety?
क्या आपने एंजाइटी महसूस करी है कभी? Yes, yes, sometimes. Yeah. Yes, both. So some or the other level, everybody I think has, experienced this, some or the other symptom of anxiety in day-to-day lives. Absolutely. Yeah. So thank you for your response. And the first thing that I would like to tell you is it's okay. अगर आपको एंजाइटी होती है तो कुछ आप में खराब नहीं है. यू आर नॉट बैड. आप गलत नहीं हैं. क्योंकि सबसे पहले आता है अरे यार मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे में कुछ खराब हो गया है. सबसे पहले तो आप ये कोई मशीन नहीं है जिसमें जंग लग गया है. एक तो हमारे को बचपन से स्कूल में सिखाया गया कि यहाँ जंग लग गया, इसको इस्तेमाल करो. अरे हम लोग कोई मशीन, वैसी थोड़ी मशीन थोड़ी है. हम तो वी आर सच अ ब्यूटीफुल ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन का इतना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है. Absolutely. It's okay. It's okay that you have it. Now we'll do something about it. We'll learn something about it. Can I share all solutions in this 60 minutes? No, of course not. I mean, that's not physically possible. Will these things always be very specific to each one of you? See, now there are so many of you I can see on the screen. For some, it may be very specific. जो मैं बोलूंगा बिल्कुल दिल पे बात लगेगी. For some, it may be general anxiety relief, floating anxiety. मे बी मैं आपके एंग्जाइटी के रीजन को शायद से ना पकड़ पाऊं, क्योंकि कितने सारे रीजन हो सकते हैं ना, कि जैसे मैंने अभी समझाए. बट हम एक जनरल व्यू में आप ऐसा क्या कर सकते हैं वो आज आपके साथ शेयर करेंगे, दैट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन फाइंड रिलीफ. एंड तभी आपने सोचा, आपने पढ़ा होगा इस सेशन का नाम हमने एंग्जाइटी रिलीफ रखा है रादर देन एंग्जाइटी क्योर. इलाज से ज्यादा हम आपको वो तकनीकें देंगे जिसको आप रेगुलरली करते जाएंगे ना, तो आपका मन शरीर आत्मा रिलेटिवली प्रसन्न रहेगा. अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पैनिक भी आता है कैटेगरी में. तो जो आज मैं टेक्निक्स कराऊंगा ना, लेट अस बी वेरी, आई वांट टू बी वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी रियलिस्टिक विद ऑल ऑफ यू. जब भी आप पैनिक की स्टेट में होंगे ना, आप ये सब नहीं कर पाएंगे. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. क्यों? क्योंकि जब आप पैनिक की स्टेट में हैं, मैं आपको ये थोड़ी बोलूंगा क्लोज योर आईज, डू दिस डू दैट. वो सब उस समय नहीं होता है. व्हेन यू आर इन दैट वल्नरेबल स्टेट, यू आर, आप खुद सोचिए, आप किसी पे बहुत भयंकर तरीके से डांट रहे हैं और एकदम से कोई हीलर या थेरेपिस्ट आके बोले ओके नाउ क्लोज योर आईज, आपको उसी पे गुस्सा आएगा. आएगा या नहीं आएगा? सो लिमिटेशंस जानिए कि कब ये सेशंस को अगर हम रेगुलरली लाइफ में रखेंगे ना, तो हमारे शरीर में एंजाइटी के जो एंकर्स बन गए हैं, एंकर्स मतलब जो जो स्थापनाएं बन गई हैं, कि वो शब्द सुनते ही, वो घर में व्यक्ति देखते ही, वो किसी की आवाज सुनते ही, अगर हम रेगुलरली थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, सो ये जो बवाल उठ पड़ते हैं ना आपके, यहाँ एंजाइटी अटैक्स आ जाते हैं, पैनिक अटैक्स में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी. ठीक है जी. सो यहाँ पर हम आज वो टूल सीखेंगे. सो तैयार है आप सभी? करना चाहेंगे एक प्रोसेस? आज मैं आपको 5 टूल्स देके भेजूंगा, उसमें से आप जितनों को यूज करना चाहेंगे आप कर लेंगे. Awesome. We are all looking अभी तक forward. समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूं? एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग मी? आर यू रेजोनेटिंग विद वेयर आई एम राइट नाउ? या, because that will help me understand that my audience is getting clear about what I am trying to speak about, what I am trying to help them with. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much for your response. It helps us keep going. So आज हम एक पहले 15 से 20 मिनट का एक प्रोसेस करेंगे, which is a visualization process. उसको कराने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि वो काम कैसे करेगा. ऐसे कैसे कुछ काम कर जाएगा, ऐसे कैसे कोई चीज ठीक हो जाएगी? अरे भाई एंजाइटी है तो कुछ तो होएगा. पर आज हम आपको उसको एनर्जी पर्सपेक्टिव से समझाएंगे. जैसे एलोपैथी होती है, सो दे आर फोकसिंग अपॉन यू नो द केमिकल केमिस्ट्री. होम्योपैथी है, दे आर फोकसिंग अपॉन द वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी. आयुर्वेदिक है, उनकी अपनी फिलॉसफी है. ऐसी एज एन एनर्जी मेडिसिन थेरेपिस्ट हमारी अपनी फिलॉसफी है. So we honor all other pathies and we at the same time we honor our pathy as well. So we understand it as that आज मैं आपको एनर्जी पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा कि हम how can we work upon this anxiety, what can we do. So देखिए, अभी मेरे इशारों को समझेंगे सब. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? मेरे इशारों को समझेंगे. यहां कुछ हुआ, बाहर मेरे जीवन में या मेरे वातावरण में कुछ हुआ, इसको हमने बोल दिया इवेंट 1, सच्ची घटना कुछ हुई और ये मेरे दिमाग में गई और ये घटना मेरे दिमाग में स्थित हो गई. क्या ये घटना डायरेक्ट हमेशा जाती है?
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने 4 मैंने डिजिट्स लिख दिए, ठीक है, 0 1 2 3 4, एक का आंखों का नंबर ज्यादा है, एक का आंखों का नंबर कम है, एक का आंखों का नंबर नॉर्मल है, क्या आप तीनों को बिना चश्मे के वो 0 1 2 3 4 सेम दिखते हैं? चश्मा नहीं लगाना है, बिना चश्मे के, बिना फिल्टर के नहीं दिखते ना? यस, क्योंकि जिसकी विजन ब्लर्ड है उसको बस कुछ कुछ दिखेगा, जिसका बिल्कुल नॉर्मल है उसको बिल्कुल 0 1 2 3 दिखेंगे, जिसका ऊपर नीचे कम है उसको पास दिखेगा, किसी को दूर दिखेगा, कुछ फिल्टर लग जाता है और उस चीज को हम वैसे परसीव नहीं कर पाते हैं जैसी वो सच्ची में है। आजकल आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि वो जूते की इमेज आती है, कई लोगों को हरे रंग का दिखता है, कई लोगों को पिंक कलर का दिखता है ना? वो आजकल वो होता है ना, कलर टेस्ट वगैरह चलता रहता है। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर तो वो रियलिटी में तो कुछ है बट हमारी परसेप्शन बदल रही है? तो फिर जो एक सच्ची घटना हो रही है और ये दिमाग में जा रही है तो सेम ना हुई? हाँ या ना? जो बाहर हो रहा है और जो मेरे अंदर आ रहा है, फिर वो तो ये 1 = 2 तो ना हुआ ना, बाहर की घटना मेरे दिमाग की घटना तो सेम ना हुई, तो फिर कुछ तो बीच में आ रहा है। ये जो बीच में आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक फिल्टर, छन्नी, फिल्टर होके दिमाग में आ रहा है। सो हम सभी के दिमाग के, हमारे इवेंट 1 माने की सच्ची घटना, एंड द अदर थिंग विच इज एन इवेंट 2 which is a secondary event which is stored in our mind, in between this is a filter which either deletes or distorts or generalizes everything. So आधी मेमोरीज आपको बचपन की याद नहीं होंगी, परसों आपने क्या खाया शायद से आधों को याद होएगा, आधों को नहीं याद होएगा। क्यों? क्योंकि खाया तो था, घटना तो हुई थी, सच में खाया था, दिमाग में याद ही नहीं है, डिलीट हो गया। इसी तरीके से डिस्टॉर्ट, किसी बंदे ने मूवी में एक डायलॉग मारा, एक बंदा उसको देख के हंसने लग गया, एक बंदा उसको देख के रोने लग गया, एक बंदे ने फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया और एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ है। डायलॉग वही था, सच्ची घटना वही थी, दिमाग की घटना चारों लोगों की अलग थी। तो डिस्टॉर्ट हो गया, सो दैट वी ऑल डिस्टॉर्ट समथिंग। हर चीज को, अभी भी मैं जिसको बोल रहा हूं, यहाँ पे आप में से कोई एक बोलेगा, वो बोलेगा वाह वाह, आप में से एक बंदा होगा अरे ये क्या बोल रहा है, इसको चुप कराओ। किसी को होता है या नहीं होता है? हम हर बंदे के साथ करते हैं ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है या फिर जेनरलाइज हो जाता है। जेनरलाइज कैसे कुछ हो जाता है, जैसे भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि आदमियों को तो यही करना चाहिए, हम किसी आदमी को रोते हुए देखेंगे तो हमारे को तो बचपन में जेनरलाइजेशन डाली हुई थी आदमी को रोना नहीं चाहिए, तो वो कहेगा अरे इसको रोना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि बच्चों को चुप बैठे रहना चाहिए, और कोई बच्चा ज्यादा बोल रहा है तो हम कहेंगे अरे ये देखो बच्चा कितना बोलता है। बाहर वो बच्चा बोल रहा है, सच्ची घटना उसके बोलने की हो रही है, मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है कि ज्यादा कितना बोल रहा है ना। क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज जनरलाइज्ड बाय द सोशल बिलीफ, बाय द सोशल आइडिया। सो हर चीज, एवरीथिंग इन योर लाइफ गेट्स डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड, एनी वन थिंग। तो फिर वो कैसे स्टोर हो रही है? तो या तो हम उनको देख के, या तो उनके विजुअल स्टोर हो जाते हैं दिमाग में। सब अपनी आंखें बंद करो, जैसे मैं बोलूंगा अपनी मम्मी को याद करो, आपको अपनी मम्मी दिखने लग गई ना? अगर इफ यू हैव सीन योर मदर बाय ग्रेस, इफ यू हैव सीन, यू कैन सी हर। अब मैं बोलूंगा कि मे बी अपने किसी टीचर की आवाज सुनो, आंखें बंद करो, आवाज सुनो, यू कैन हियर देयर वॉइस एज वेल। हाउ? बिकॉज उनकी मेमोरी आप में ऑडियो की तरीके से स्टोर हुई है। एक और चीज कैसे स्टोर हुई होती है? फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन लव राइट नाउ, इफ आई वर टू आस्क यू दैट फील द लविंग सेफ टच ऑफ योर पार्टनर, यू कैन फील इट। और मे बी उसको छोड़ो, मैं बोलूंगा किसी कांटे को, गुलाब के कांटे को सोचो, यू कैन फील दैट कि हाँ वो कांटा चुभा था हाथ पे जी, खून आ गया था। बिकॉज दैट मेमोरी स्टोर्ड इन आइदर इन किनेस्थेटिक फॉर्म, किनेस्थेटिक इस फीलिंग्स में स्टोर हुई है, या कुछ और होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा राजमा चावल, आ गए धुएं राजमा चावल के, खुशबू भी आ गई। सो राजमा चावल तो पता नहीं कब बने थे, या वो ऑल्फैक्टरी तरीके से, उसकी स्मेल के तरीके से हमारे दिमाग में है। या मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल एक जगह का, स्पेसिफिक जगह का, कोई भी मशहूर जगह का बटर चिकन, कड़ी चावल, उसका टेस्ट आ गया। सो या वो गस्टेटरी तरीके से हुआ हुआ है। हाँ या ना? ऐसे ही होता है ना हमारे अंदर। सो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर स्टोर हुई हुई हैं, यही हमारी मेमोरी बन जाती है। और अगर बुरा ना माने तो मैं जरूर बोलूंगा, इंसान ही वो एक जानवर है जो एक घटना को कई बारी जीता है और कई बारी सहता है। और आप सबकी एंजाइटी का कारण वही है। हम सब वही जानवर हैं जो घटनाएं हो चुकी हैं, पर उसी घटना को बार बार हम जी रहे हैं। वी आर सफरिंग द सेम इवेंट दैट हैपेंड, वी डोंट नो व्हेन,
And we don't even remember sometimes the event, but we are reliving it every day, and that is the cause of your anxiety. So now let's do a beautiful session and help you clear that, help you resolve that energetic issue at the energetic level today. Chaliye, everybody ready? चलिए, close your eyes. बैठ जाएंगे सभी, जहां पर भी हैं, कुर्सी पे बैठ जाइए, बिस्तर पे बैठ जाइए, जहां बैठना है बैठ जाइए. और मेरी, आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी. अगेन, जस्ट रिसीव द सेशन. डू नॉट पुट लॉजिक, डोंट मेक नोट्स. You don't everything written works in your life. Try to experience it. 15 minute का session, it's just a 15-minute session, and then I'll give you some quick takeaways as well. Close your eyes, everybody. Breathe in and breathe out. Just breathe in and breathe out. And sit in complete silence for a minute. जब भी इंसान शांत बैठता है, तभी सारी उसके एंजाइटी इश्यूज उसके दिमाग में आते हैं. सो आज कोई भी एक टॉपिक की एंजाइटी लेंगे, अपनी आंखों को बंद करके मुझे सुनते रहेंगे. जस्ट कीप योर आईज क्लोज्ड एंड कंटिन्यू टू लिसन टू मी. With your eyes closed, think of that one thing which creates worry or maybe tension or fear or trouble or anything inside you. It can be some issue with a family member, it can be any issue. Or if you do not understand it, if you, for example, there will be some people who don't know the cause of their anxiety. It's okay. Just feel that feeling fully. Become aware of it. उसको जानिए और पहचानिए. और 1 मिनट शांति से बैठेंगे. शांति से क्यों बैठेंगे? Because when we are quiet, it really comes up. That is why a lot of people cannot meditate. Because when we ask them to meditate, anxiety comes up. Now, if you are doing my anxiety techniques regularly, then you will be able to meditate better. Why? Because ये जो कीड़े भरे पड़े हैं, जो घटनाएं भरी पड़ी हैं, इनको हम साफ करना बताएंगे. और काफी बारी भी करना पड़ सकता है, पर आज एक ही सेशन से आपको कितना रिलीफ मिल जाएगा, आप आज देख लेंगे. चलिए, अब पकड़ में आ गई एंजाइटी, कोई एक घटना आ गई, कुछ जो घबराहट है बस वो समझ आ गई. अब अपनी आंखों को बंद रखते हुए, आंखें कोई नहीं खोलेगा, देखने को कुछ नहीं है स्क्रीन पर, सिर्फ मेरी आवाज सुनिए. Give this anxiety a location in your body. If this anxiety were stored in some part of your body, where would it be? अगर ये एंजाइटी एक आकार में होती, एक रूप में होती और आपके शरीर में किसी जगह पर स्थापित होती, तो किस अंग या किस स्थान में होती? अपने मन में सोच लेंगे. कोई भी चैट बॉक्स में सब नहीं लिखेगा, क्योंकि आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे. If this anxiety were a part of any part of your body, where would it be? इसको स्थान दीजिए अपने किसी शरीर के हिस्से में. And now, if this anxiety had a color, अगर इस एंजाइटी का एक कलर होता, एक रंग होता, एक रूप होता, तो वो कैसा होता? Give it some dirty or give it some unpleasant color, some color which you do not like. और उस अंग में, उस स्थान में इस कलर को देखिए. Third, if this color and if this part has stored the anxiety in some shape, what shape would it be? अगर इस एंजाइटी का कोई आकार या प्रकार होता, तो वो किस आकार, किस रूप, स्वरूप का होता? Become aware of that. Once again, see it. Where is it stored in your body? What color is this anxiety? And what shape is this anxiety? Now, see, is it heavy or is it light? यह वजन में भारी है या हल्की है? And now see if there is any spin or any motion. For example, ये जो भी एंजाइटी है, ये घूम रही है, दौड़ रही है, बाहर की तरफ जा रही है, चुभ रही है, हथौड़े की तरह पड़ रही है, या पंख की तरह हल्की है. कैसा है? What is the motion? Is it moving clockwise? Is it moving anti-clockwise? What is the motion of this anxiety? Just become aware of it.
Believe me, just becoming aware of it is healing it halfway. If you can see it, if you can see through your fears, you are halfway done. Now let's go ahead. एक एक करके स्टेप बताए चला जाऊंगा, आंखों को बंद रख के करते चले जाएंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अ डीप ब्रेथ आउट. एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और एक लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे. अपने सामने एक बहुत ही सुंदर झरने को, पानी के झरने को देखेंगे. अपने सामने कुछ दूरी पर आंखों को बंद रखते हुए एक पानी के झरने को देखेंगे. इमेजिन अ ब्यूटिफुल वाटर फाउंटेन right in front of you at some distance. Now give the color of this water as something very pleasant, some very light color which represents calmness, peacefulness and delightfulness to you. इस झरने के पानी को कोई एक ऐसा रंग देंगे जो बहुत ही शांत स्वरूप का है, जो बहुत ही शांत रंग है. इट कैन बी एनी लाइट और एनी पेस्टल कलर. फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, सॉफ्ट पिंक, बेबी ब्लू, baby green, any light color, light yellow and bright. Let it be a very pleasant color that you enjoy, and it represents calmness, peace and delightfulness for you. Yes, breathing in and breathing out. Now जैसे ही मैं 1 से लेकर 3 की गिनती गिनूंगा, आप चलकर इस झरने के पास जाएंगे. चलकर इस झरने के पास जाएंगे. 1, 2 and 3. इस झरने के पास near this fountain are kept 2 plastic mugs, just like the mugs you take bath with. These are those plastic mugs. अब लिटरली फिजिकली मुझे सुनते सुनते जैसे हम बाल्टी में मग भर के पानी निकालते हैं, लिटरली लिफ्ट अप योर लेफ्ट एंड योर राइट आर्म्स एंड होल्ड द मग्स इन देम एंड फिल देम विद दिस वाटर. इस झरने वाले पानी से दोनों मग में पानी भरो और अपने आप को नहलाना शुरू करो. In the meantime, if some of you wish to see me, only those who are unclear can see me doing it on the screen. So आपके हाथों में लेफ्ट और राइट हाथ में मग्स हैं प्लास्टिक के. इसको झरने में डालो, प्लेजेंट कलर के पानी को भरो और जैसे हम अपना पिंड स्नान करते हैं, just like we take bath, put it on yourself. Put it on yourself. Do it literally. I want to see you guys doing it on the screen. You don't have to visualize it. Do it literally. Put your hands in the jharna, put your hands in the fountain of pleasant color and start putting this pleasant color all over your body. प्यालों में भरते चले जाओ और अपने शरीर से लेकर, सर से लेकर पूरे शरीर पर डालते चले जाओ. As if you are taking bath with a pleasant color. Do it 20 to 25 times. Now increase the speed. And now see, just like आपके शरीर पे अगर मिट्टी चढ़ी होती है और आप उस पे पानी डालते हो, वो धुलता है या नहीं धुलता है? धुलता है ना. उसी तरीके से जो एंजाइटी की जो अनप्लेजेंट कलर है, जो एंजाइटी का जो अनप्लेजेंट एनर्जी है, उसके ऊपर डालना शुरू करो. एंजाइटी जिस भी पार्ट में स्थित है उसके ऊपर ये प्लेजेंट कलर को, ये लाइट कलर को, ये सॉफ्ट कलर के पानी को डालो और धो दो. धो इस एंजाइटी को. चलो सब धो अच्छे से. हाथ उठाओ और धो इसको अच्छे से. धो और देखो वो एंजाइटी का कलर बहता जा रहा है, नीचे पांव तक जा रहा है. उसकी जगह को बदलते जाओ. सर में है तो सर से पांव में डाल दो, पांव से नाली में जा रहा है. इफ इट इज इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, वॉश इट विद योर प्लेजेंट कलर. वॉश अवे द अनप्लेजेंट कलर विद दिस प्लेजेंट वाटर फ्रॉम द फाउंटेन. मग में पानी भरते चले जाओ और साफ करते चले जाओ. वो आपके पांव से बह बहकर नाली में जा रहा है. इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम योर फीट इनटू द ड्रेनेज एरिया. Again, do it 5 to 6 times more with me and you see it is becoming lighter and lighter and lighter. Wash away this energy. Cleanse, clean, purify. If it is stored in your stomach, put this water on your stomach. If this is stored in your knees, put it on that knee. If it is stored in your head, put it on your head. And then take full body bath. Fill your body with this pleasant color as much as you can. Don't worry. Don't worry if the stains are still there. You do your job. You just follow my steps. I will guide you step by step. Okay? Now 2 times more. एक बारी अच्छे से पूरा भर के उठाएंगे, सर से डालेंगे पांव तक और सारी एंजाइटी धुल के ड्रेनेज में भेज देंगे. एक बारी फिर से उठाएंगे, सर से लेकर डालेंगे अपने शरीर पर और पूरी एंजाइटी को बहने देंगे. कीपिंग योर आईज क्लोज्ड. Yes, you can do it. Very well. Very well. Very well. Now sit back again and just observe. अपने मन ही में, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कितने % या कितनी हद तक वो अनप्लेजेंट एनर्जी या वो शेप
बदली है। कई आप में से कई लोगों की बिल्कुल धुल गई होगी, कई लोगों की थोड़ी थोड़ी रह गई होगी, कई लोगों की बढ़ गई होगी, कई लोगों की कुछ और हो गई होगी। चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। अब याद करेंगे बर्तन कैसे धोते हैं। हम जूने से धोते हैं। हाउ डू वी वॉश आवर यूटेंसिल्स? वी यूज द स्क्रब, वी पुट इट ऑन द सोप एंड वी clean our deep stains, oily stains, stains of curries, leftover curries from our bartans. We wash it away. Now 1 2 3, आपके फाउंटेन के पास में एक बहुत ही सुंदर दोनों हाथों के लिए स्क्रब पड़े हुए हैं, आपके जो स्कॉच ब्राइट पड़े हुए हैं, एंड वहीं पर बहुत ही अच्छे पावरफुल विम बार या कोई भी आपका फेवरेट साबुन पड़ा हुआ है। चलिए दोनों हाथों को उठाएंगे, इस स्पॉन्ज को गीला करेंगे इस फाउंटेन के प्लेजेंट वाटर से, प्लेजेंट वाटर से भिगो दीजिए, दोनों पे साबुन लगाइए और जहां पर भी एंजाइटी की एनर्जी है उसको साफ करना शुरू कीजिए। जूने से साफ करते हैं ना, जस्ट द वे यू पुट लूफो ऑन योर बॉडी एंड यू क्लीन योर बॉडी, रब योर बॉडी, रब दैट एरिया ऑफ एंजाइटी एंड वॉश इट अवे। एंड व्हाइल यू आर वॉशिंग, दूसरे हाथ से मग में पानी भरेंगे और उसके ऊपर पानी डालते जाएंगे। बर्तन धो रहे हैं उसी तरीके से अपने आप को धोएंगे। फ्रॉम वन हैंड स्क्रब योर बॉडी, फ्रॉम द अदर हैंड लिफ्ट अप द प्लेजेंट एनर्जी एंड पुट इट ओवर। Keep scrubbing, put up the pleasant energy. Keep washing that color. उस कलर को खत्म कर दो, जीरो कर दो। अनप्लेजेंट कलर बचे ही ना, दूषित ऊर्जा बचे ही ना, साफ कर दो, धो डालो इसको सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से। Put it with the pleasant water, clean it. Yes, you can do it. All of us can do it. We have the right. We deserve healing. We deserve peacefulness. Put the energy of peacefulness, put the energy of delightfulness, wash it away. अच्छे से धो दो। कई लोगों के शरीर के दूसरे हिस्से में एकदम से एंजाइटी आ जाएगी, चलो उस जगह हाथ ले जाओ, वहां पे रगड़ के धो दो, दूसरे हाथ से दूसरे मग से साफ पानी डालो। Put the color which is pleasant to you, put the color which represents pleasantness to you. Do that. Yes, yes, and once again. Yes, take your time, take a minute. कोई जल्दी नहीं है, किसी ने कहीं भागना नहीं है। Clean it fully, clean it fully. Yes, I am here with you. You can do it. Now get back, keep your eyes closed. For all those जिनको ये बहुत भारी लग रहा है या जिनको इसकी मोशन बहुत तेज लग रही है, मेरी आवाज को सिर्फ सुनते चले जाएंगे। जिसको भी अगर मोशन जहां भी दिशा में लग रही है उसकी उल्टी दिशा में रिवाइंड करेंगे। आंखों को बंद करके मुझे सुनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस एंजाइटी इज गोइंग स्पाइरल, इफ इट इज गोइंग स्पाइरल, इफ इट इज मूविंग लाइक अ व्हील, आप अपने हाथ लेकर जाइए और उस व्हील को उल्टी दिशा में घुमा दीजिए। जस्ट रिवाइंड इट, पुट इट इन द ऑपोजिट ऑर्डर। कई लोगों की दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई है या बढ़ती है एंजाइटी में, सो दिल की धड़कन देखो बाहर की तरफ जाती है, दिल धक 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 बाहर की तरफ करता है, तो आप अपने हाथों को उठाओगे और उसको अंदर की तरफ डालते जाओगे। जस्ट पुट इट इन द ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी की एंजाइटी उनके शरीर से नीचे गिर रही है तो उसको उठा के उसके स्थान पे वापस डाल दो। अगर किसी के सर से जैसे एकदम से रेडिएशंस बाहर जा रही हैं एंजाइटी की, कोई कह रहा है सर फट रहा है, तो अगर वो बाहर की तरफ जा रही हैं तो उसको पकड़ के वापस डाल दो। जस्ट रिवाइंड इट, डू दैट नाउ। स्टॉप द मोशन, whatever is the motion of this anxiety, stop it now. Bring it to net zero. If it is moving to left, you bring it to right. If it is going up, you bring it to down. If it is going down, you bring it up. If it is going clockwise, you bring it anti-clockwise. Just bring net motion zero. कर दीजिए। आप में से कई सब होंगे, कईयों को दिख रहा होगा, कईयों की कुछ मोशन नहीं होगी। जिनकी कोई मोशन नहीं है वो उसको धोते रहेंगे, उसको प्लेजेंट कलर से भर देंगे। जिनकी मोशन है वो जरूर रोकेंगे इस चीज को। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आप में से कई लोगों को ये बहुत भारी लग रही होगी एंजाइटी। जैसे कई लोगों को लग रहा होगा पत्थर भरे पड़े हैं। सो जिनको लग रहा है पत्थर भरे पड़े हैं, जहां पर भी ये पत्थर भरे पड़े हैं अपना हाथ लेकर जाएंगे, इन पत्थरों को उठा के बाहर गिरते जाएंगे जब तक वो एरिया हल्का ना हो जाए। कईयों को लग रहा होगा हथौड़े की मार पड़ रही है, जैसे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, तो ये हथौड़े को उठा उठा के फेंकते चले जाएंगे, फेंकते चले जाएंगे, फेंकते चले जाएंगे, अपना हाथ से फेंकते चले जाएंगे, फेंकते चले जाएंगे। यस, कईयों को लग रहा होगा जैसे पहाड़ बना हुआ है चिंताओं का,
तो आप फिर एक हथौड़ा लेके पहाड़ को जैसे तोड़ते हैं ना, टक 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 टक, उस तरीके से इस पहाड़ को तोड़ दीजिए, तोड़ के कंकर बना दीजिए और फिर कंकरों को उठा के बाहर फेंक दीजिए। चलिए कीजिए सब मेरे साथ ऐसा। और किसी को नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें अपनी एंजाइटी का, तो वो लोग अपने मन ही मन में बोलेंगे, हे दिव्य शक्ति, मेरे राइट हाथ में मुझे एक हीलिंग लेजर प्रदान करो, मेरे राइट हाथ में मुझे एक हीलिंग लेजर प्रदान करो। आंखों को बंद रखेंगे, आप सभी ने लेजर को देखा होगा ना, उस तरीके से अपनी बॉडी पर लेजर डाल के उस ब्लॉकेज को खत्म कर देंगे। इफ इट इज अ स्टोन लाइक ब्लॉकेज, just put your laser on it and just diminish it fully 100%. If these are stones and you don't know how to remove them, burn them with the laser. If they are stagnant blockages of flesh or maybe any kind of negativity you don't know, it is black like smoke, so you can just put it laser and you can put white laser on it and clean it. Or if it is smoke, you can put water on it and just let it diffuse it away. If it is a mountain, burn it with the laser, make it hollow. खोखला कर देते हैं ना, खोखला करके खत्म कर दो इसको। अपने मन ही मन में बोलोगे, डिवाइन लेजर हील मी, डिवाइन लेजर हील मी, डिवाइन लेजर हील मी। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। Yes, you all can do it. For some of those friends who have experienced any kind of abuse, you can also clean that part from your body. Don't worry. As much as you can. Pressure मत डालिए अपने आप अपने ऊपर. And now take a deep breath and get back. अब एक बारी लास्ट धुलाई फिर से करेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि उनके अंदर ये इमोशंस भरी पड़ी हैं, फटी पड़ी हैं, तो आप कभी कभार लेजर से होल बना के उस एनर्जी को रिलीज भी कर देंगे, ताकि वो भरी हुई एनर्जी क्लीन आउट हो जाए। एंड नाउ गो बैक टू दैट फाउंटेन, गो बैक टू दैट फाउंटेन। एंड नाउ वंस अगेन 5 से 6 बारी करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथों के मग्स उठाएंगे, प्लेजेंट कलर के पानी को भरेंगे, और प्लेजेंट कलर जो भी आपका प्लेजेंट कलर है, पिंक, ब्लू, लाइट येलो, व्हाइट, उस कलर के पानी को अपने सर से लेके पांव तक फिर से डालना शुरू करेंगे। अब आपकी दूषित ऊर्जा साफ हो गई है। जब हम लोग कुछ भी ऐसा काम करके आते हैं सफाई का, तो हम नहाते हैं ना मोस्टली सब, या हाथ पांव धोते हैं ना, तो अब फिर से धोइए। चलिए, पुट प्लेजेंट कलर सो दैट ऑल द अनप्लेजेंटनेस इज डिलीटेड, रिमूव्ड, रिलीज्ड एंड क्लियर्ड। डू दैट नाउ। Yes, you can do it. Just put these water, put this pleasant colored water on your full body. सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक। Yes. And now my dear friends, just once again with me, for your good. फिर से स्कॉच ब्राइट को उठाएंगे, साबुन लगाएंगे और बचे कुचे दाग धब्बों को उठा के धो देंगे। ब्रश इट पूरा, जैसे सर साफ करते हैं, तो अगर सर पर एंजाइटी है तो सर हेयर वॉश ले लो, बॉडी वॉश ले लो। यू पुट लूफा ऑन योर बॉडी, जस्ट क्लीन दैट एनर्जी, जस्ट मूव इट एंड क्लीन इट, मूव इट एंड क्लीन इट। यस, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। जस्ट डू इट फॉर 5 to 10 seconds more. Yes, don't worry. Just do it and clean it. सब clean करके, and now last time, take this pleasant water, this white water, yellow water, pink water, blue water, whatever is pleasantness, delightfulness for you, put that 7 to 10 times again on your body. पिंड स्नान जिसको हम बोलते हैं, जैसे कई लोगों को होली वाटर स्नान पसंद होता है, फॉर एग्जाम्पल गंगा स्नान, यमुना स्नान, you know, or maybe, you know, Christ water, or, you know, Vaheguru ji ka pani, and, you know, your Christ water or Allah's blessing, anything. If you are that religious kind of person, then see it as your grace of the God, or, you know, grace of the divine. You see it in that way. And just wash it, completely wash it. And now let it set, let it wash away. Sab kuch drain mein chala gaya hai. Yes. And once you take your time, and once you feel you are done, you will sit back quietly. You will sit back quietly. And now, मेरी चुटकियों के आवाज से, by the sound of the snap of my fingers, you will let go of the fountain, you will let go of all the dirt, and you will let go of everything, and you will come back. 1, 2, 3, जो आपका फाउंटेन है वो हवा में जल के समाप्त हो गया है। 1, 2, 3, बचा कुचा पानी, स्कॉच ब्राइट साबुन चला गया है। 1, 2, 3, मग्स भी गायब हो गए हैं। 1, 2, 3, the atmosphere is clean.
1, 2, 3. You are completely healed. Come back. Now keep your eyes closed. Take 3 deep breaths. Take 3 deep breaths and keep your hands on your heart. जैसे हम अपने दिल पर हाथ रखते हैं, सब अपने दिल पर हाथ रख के 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे, लंबी गहरी श्वास जिसको कहते हैं. And slowly come back. And once again, slowly come back and take a deep breath in. And slowly come back. And whenever you are ready, whenever you feel peaceful, just come back and open your eyes. Open your eyes, everybody. धीमे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं. That's wonderful. That's wonderful, my dear friends. How are you feeling? Take your time. If you have water, पानी है आसपास तो एक पानी का घूंट भर लीजिए. Just sip a bit of water. And give me 30 seconds. Give me just 30 seconds. Do write to us, everybody, your experiences of this cleansing, what we have just done with Ujjwal. How did you feel? Yes. It was absolutely amazing experience, Ujjwal. Thank you so much. And everybody is really appreciating the technique you My have. burden is vanished. How good is that, you know? We have all just calmed down, Yeah. you know, feeling so light. Yes, somebody saying we can be atheists too. Absolutely. I mean, this is not something a belief system based work. It is absolutely working with the visuals and the audios and the feelings and whatever is generated. You're just transforming that. And we are so grateful to Milton Erickson, you know, for his philosophy over these things. So, If anybody has any question, they can ask us in the chat box. And this was just a small taster which we just did with Ujjwal Batra. And I'm sure, you know, everybody has just enjoyed what exercise we have just done. I completely enjoyed it. So one of the viewers, Kriti, is saying feeling better, but I do feel heavy in the location. It was getting difficult to complete this task, but did it somehow. Also, people can be atheists too. yeah. So I understand because these are such deep rooted anxieties, right? Sometimes we need more sessions and repetitions, etc., or some kind of specific work. I'm going to share 3 quick exercises right now with all of you that you all can as well do and take it as a takeaway and do it daily, even many, many times a day. So are you all ready for that? So do write to us if you are ready to know the tips and techniques to release anxiety whenever you feel that. So you can apply those tips and techniques Yes. and you will be out of your anxiety state. Absolutely. These are, you know, now I'm going to tell you energy medicine, you know. So quickly, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है. So जब भी हम लोगों की एंजाइटी बढ़ती है, हमारे फाइट फ्लाइट या फ्रीज मोड जब भी एक्टिवेट होते हैं, हमारी बॉडी की एक्चुअली अभी करंट स्टेट ऐसी हो गई है कि हमारे इतनी सारी चीजें ट्रिगरिंग एंजाइटी टू अस दैट नेचुरली यू नो हमारा ब्लड फ्लो अलग अलग ऑर्गन्स में ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है. सो मच सो इवन हमारे दिमाग में भी ढंग से फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है. सो अ सिंपल थिंग, जब हम लोगों ने मूवीज में देखा होगा कोई सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, वो हाथ कहाँ रखता है अपने शरीर के? ऐसे बैठता है या नहीं बैठता है? Because somehow body's natural method is to bring your hand here.
because your hands are electromagnetic in nature. If you understand aura, if you understand energy, everything is electromagnetism. So is your blood. So first tip goes right here. Whenever your head is aching और आप परेशान हो रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या करें? एक हाथ आगे, अभी करो मेरे साथ सभी, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, one hand in front and one hand in back. Close your eyes and take 5 deep breaths. मुझे सुनते जाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे. Just breathe in. One hand in front, one hand in the back. What this does is it brings in the blood in this area. And when blood flow increases in this area, your mind relatively starts feeling better. These are energy meridians present in your body. You can take 10, 15 deep breaths as well. In this session, we are just making you do 5 breaths. You can do it for as long as you feel. आपको करते ही थोड़ी सी शांति महसूस हो जाएगी. करिए. 2-3 more seconds. एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, and just breathe in and breathe out. जब भी कभी बहुत एंग्शियस सिचुएशन होती है, अगर आप इसको घर पे भी करेंगे, कहीं भी करेंगे, आसान है, इफेक्टिव है. चलिए नीचे आ जाइए. कैसा लग रहा है? जिसको हम कहते हैं ना एकदम से क्विक ईज, यू नो. या एक और टिप बताऊं, छोटी सी बढ़िया सी. जब भी दिल में घबराहट होती है, समझ नहीं आ रहा है, या कोई मेमोरीज याद आ रही हैं, या जैसे कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, सब मेरे साथ करोगे. आ जाओ, अपने दिल पर एक हाथ रखो. पहले ना एक बार ये देख लो, राइट रिंग फिंगर होती है दिस फिंगर, थर्ड फिंगर, एंड लिटिल फिंगर इज दिस फिंगर. इसके बीच में इधर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में इधर, ठीक है. इसी हाथ पे भी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में इधर, ठीक है. ये पॉइंट, इसको चाहे आप बस ऐसे रख लीजिए कि टैपिंग पॉइंट बोल लीजिए इसको. वैसे गेमट का स्थान होता है एनर्जी मेरिडियंस में, दिस कॉल्ड एज द गेमट पॉइंट. सो एक हाथ को ऐसे यहां रखेंगे अपने दिल पर, हार्ट चक्रा पर. आंखें बंद करके सांस लेंगे और आंखें खोल के मुझे देखेंगे. ये जो गेमट पॉइंट बताया ना, दूसरे हाथ से उसको टैप करेंगे ऐसे, देखिए. और टैप करते करते आंखों को बंद करके 5 सांसें लेंगे. जस्ट 5 डीप ब्रेथ्स. कभी भी दिल धक धक हो रहा है, दिस पॉइंट हेल्प्स यू डिफ्यूज एक्सेसिव अनप्लेजेंट मेमोरीज फ्रॉम योर बॉडी. ऐसे ही अगर किसी की एंग्जाइटी और तेज है तो वो दूसरे हाथ से भी करेंगे. अब करेंगे मेरे साथ. दूसरा हाथ रख दीजिए यहाँ पर और अब दूसरे हाथ के गेमट पॉइंट पे टैपिंग कीजिए. आंखों को बंद करके 5 डीप ब्रेथ्स लीजिए. अभी मैं 5 करवा रहा हूं. जब आप उस सिचुएशन में होंगे, आप जितनी मर्जी कर सकते हैं. क्लोज योर आईज, टैप द गेमट एंड जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ये आपकी दिल की हार्ट पाउंडिंग को रिलैक्स करने में, अनप्लेजेंट मेमोरीज जो सर पे हावी हुई पड़ी हैं, उस वक्त में, उसी वक्त आपको रिलीफ देगा. चलिए आ जाइए वापस. करेंगे ये दोनों टेक्निक्स रोज. आसान है. एक और दे दूं, एक और बहुत बढ़िया एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स. यहां से लेकर जाओगे, याद रखोगे कि सोल सेतु के सेशन में आए थे, उज्जवल बत्रा से टेक्निक्स ली थी, तो आज चिंताएं और एंग्जाइटी कम हो गई हैं. चलिए भंडार में लेकर जाइए. अब मुझे देखेंगे, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अपने क्लोज कर रहा हूं सो दैट यू कैन सी मी. इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं. अभी मैं क्योंकि बैठा हुआ हूं तो मुझे देखेंगे. पहले मुझे देख लीजिए, फिर करना, ठीक है. देखेंगे. सो हमारे ना कुछ एनर्जी मेरिडियंस पॉइंट होते हैं. मैं लॉजिक आज नहीं समझा पाऊंगा, फॉरगिव मी फॉर दैट. सो आज सिर्फ टेक्निक ले जाइए, रीजंस बाद में पूछिएगा. सो ऐसे आंखों पे पहले हाथ रखना है. एक सांस अंदर लेनी है, फिर बाहर छोड़नी है. बाहर छोड़ते हुए हाथों को खींच के टेम्पल्स पे लेकर आना है. ये टेम्पल्स ये होते हैं, ये वाली साइड ऑफ द आईज, ठीक है. यहां से फिर एक डीप ब्रेथ लेनी है. डीप ब्रेथ लेते लेते कान के ऊपर से ऐसे पीछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे. और डीप ब्रेथ को छोड़ते हुए नीचे आएंगे. इतना आसान है. कंधों पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाएंगे. फिर एक और डीप ब्रेथ लेंगे. अभी मैं करवाता हूं, चिंता मत करो. छोड़ते हुए हाथों को ऐसे नीचे लेकर आएंगे और दिल पर रख लेंगे. और यहां एक डीप ब्रेथ लेंगे.
इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसको आप रोज कीजिए, दिन में 2 बारी एज अ डोजेज। आपकी जनरली यहाँ की एनर्जी मेरिडियंस, आपकी ट्रिपल वार्मर जो एनर्जी मेरिडियंस होते हैं, ये आपके खुलने शुरू हो जाएंगे, रेगुलेट एनर्जी हो जाएगी शुरू। इसको रोज तो कीजिए ही कीजिए, बट जब एंजाइटी हो रही है तब जरूर कीजिएगा। अभी मैं मेरे साथ 3 बारी कर लीजिए। चलिए आ जाइए सब। आंखों पे हाथ रखिए, ब्रीद इन, हाथों को टेम्पल्स पे लेके जाइए, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, कानों के ऊपर हाथों को लेकर जाएंगे। ब्रीद आउट करते हुए गर्दन तक पूरे ऐसे ऐसे नीचे लेकर आएंगे और कंधों पे हाथ टिका देंगे। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए ऐसे इसको हार्ट पे ले आएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, चलिए एक बारी फटाफट से 2 बारी फिर कर लेते हैं। आंखों पे हाथ, टेम्पल से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए पूरा अच्छे से टच करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कंधों पे ऐसे हाथ, सांस अंदर बाहर हार्ट पर लाके छोड़ देंगे। 3-4 गहरी सांसें यहाँ लेंगे। One last time today here, then you can do it every day. Eyes, from your eyes to your temples. Breathe in, temples से कानों के ऊपर, above your ears. From the back side, do it slowly, touching your neck. Come to the shoulder area, relax there. Take a deep breath again. And bringing your hands down, breathe out and keep your hands at your heart. 1 or 2 times, just take deep breaths. And we are done for the day. ठीक है जी, मजा आ गया? अगर आ गया तो एक बारी चैट बॉक्स में लिख दो। चलिए, मेरा आज का कार्य यहाँ पे पूरा हुआ। Because I just simply enjoy doing all of this for you. So एक बारी I would love to read, what you guys are writing in the chat box, and then I will hand it over to Pooja Di. It was a great experience, Ujjwal. Yeah. बहुत बहुत मजा आया, एंड जो आपने टेक्निक्स बताई आई थिंक वो बहुत ही सिंपल है, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड टेक अवे फॉर ऑल आवर व्यूअर्स. दे कैन इजीली डू इट एट होम एंड एनी टाइम और एनी वेयर दे कैन डू इट वेन एवर दे फील एंग्शियस, या किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक फील करते हैं या कभी भी किसी चीज के लिए पैल्पिटेशन फील करते हैं, सो दे कैन जस्ट इजीली क्विकली डू इट वेर एवर दे आर. सो इसमें कोई प्लेस की, कोई स्पेस की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है. बिल्कुल. जो आपने विजुअलाइजेशन भी कराया, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव. सो आप सबने देखा कि आज उज्जवल ने कितने ही प्यारे और अच्छे तरीके से हमें ये क्लेंजिंग सिखाई, और कैसे हमें एंजाइटी से बाहर निकलना सिखाया. एक सिंपल सिंपल टिप्स एंड टेक्निक सिखाई जो कि बहुत ही यूजफुल है. सो इसी तरीके से हमने ये छोटा सा आज टेस्टर दिया मेडिटेशन का, और हम अब आने वाले हैं सोल सेतु के एक एनुअल इवेंट पे जो कि होने वाला है 20th ऑफ दिसंबर को. और 20th ऑफ दिसंबर मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 7 PM तक ये नॉन स्टॉप 12 मेडिटेशंस, 9 आवर्स ऑफ हीलिंग एंड 7 आवर्स ऑफ डिविनेशन टूल, जो कि हम आपको देने वाले हैं 5 चीजें बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस में, जिसका कि अदरवाइज प्राइस बहुत ज्यादा है, इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है. But just since it is a fundraiser that we are doing at Soul Setu Wellness Foundation for their annual event on 20th of December, so we are just giving it in 555 rupees, which is a very very simple and nominal amount. And अगर आप आज इस वेबिनार के थ्रू बुक करते हैं, जो कि लिंक चैट बॉक्स में दिया गया है, सो आपको 3 मेडिटेशंस, 2 हीलिंग के साथ एक डिविनेशन टूल भी आपको फ्री मिल रहा है. जो और आपने अभी उज्जवल के साथ मेडिटेशन करी, उसका लिंक भी हम आपको फ्री में देंगे अगर आप अभी के अभी रजिस्टर करते हैं इस लिंक में जो कि चैट बॉक्स में दिया गया है उसके साथ. और अगर आप जानना चाहते हैं और ध्यान उत्सव के बारे में, तो आप www.soulsetu.com पे भी जा सकते हैं, और उससे आपको ये पूरे फेस्टिवल का जो है डिटेल मिलेगा. एंड 12 डिफरेंट फैसिलिटेटर्स हैं वर्ल्ड रिनाउंड, जो कि इस 12 एक घंटे की मेडिटेशन को फैसिलिटेट करने वाले हैं, एंड उज्जवल इज वन ऑफ देम. सो व्हाट आर यू थिंकिंग? गो एंड रजिस्टर राइट नाउ विद दिस लिंक, बिकॉज ऐसा ऑफर फिर से मिलने वाला नहीं है. और डिविनेशन टूल्स हैं जो कि बहुत लिमिटेड स्लॉट्स में है. अगर आप अभी इस वेबिनार के थ्रू रजिस्टर करते हैं
So you can choose the divination tool you want to go for. Once the slots are booked, then you won't be able to avail this offer. And this offer is just in rupees 555, in which you are getting 3 meditations, 2 healings, and 1 divination tool, also the recording of the meditation we just did with Ujjwal. So उज्जवल भी आने वाले हैं हमारे ध्यान उत्सव में, और हमें एक बहुत प्यारी सी मेडिटेशन कराने वाले हैं. सो वी विल आस्क उज्जवल कि आप अपने मेडिटेशन के बारे में बताइए प्लीज. Okay, so this event is happening at a very beautiful time जब ब्रह्मांड में एक बहुत beautiful सैटर्न और जुपिटर की कंजंक्शन होने वाली है. हम 12 फैसिलिटेटर्स मेडिटेशन के हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं. डिविनेशन अगर कोई सोच रहा है क्या होता है, तो मतलब आपके प्रश्न का उत्तर देने वाले वो तरीके, कुछ अलग अलग मेथड्स. Somebody will do it through numbers, somebody will do it through cards, somebody will do it through a dice game, different methods. So मेरा जो स्लॉट है वो 3 से 4 बजे का है, 3 से 4 बजे 20 तारीख को शाम को. And my meditation's theme is building your light body for a glorious future, for an abundant future ahead. So इसमें हम बहुत ही beautiful 2 शक्तियों के साथ कनेक्ट करेंगे, जुपिटर एंड जुम्बे की शक्ति के साथ, सैटर्न एंड क्वेशी की शक्ति के साथ. और फिर हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड से अपने आने वाले फ्यूचर, सिर्फ 1 साल नहीं, इन जनरल जीवन के फ्यूचर में कैसे हम अपने गोल्स की स्थापना कर सकते हैं एनर्जेटिकली, वो सब आपको करना सिखाएंगे. एंड बहुत ही ब्यूटीफुली पावर पैक्ड एनर्जेटिक प्रोसेस हम इस 1 घंटे में 3 से 4 बजे करेंगे. सो यू कैन फाइंड द डिटेल्स थ्रू सोल सेतु's वेबसाइट. अमेजिंग उज्जवल, इट साउंड्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और जैसे आपने बताया कि 2 प्लैनेट्स जो हैं कंजक्ट करने वाले हैं ऑन 21st, और उसके लिए हमें अपनी एनर्जी अलाइन करना is very very important, since it's a very very powerful day. So this is a virtual event, or to I घर want बैठे हैं सभी के लिए. participants अपने घर बैठ के आप Zoom पे ये पूरा फेस्टिवल अटेंड कर सकते हैं. और आपको जो अभी जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ईमेल के थ्रू कॉन्फर्मेशन मिलेगी, and then later before the event you will get all the Zoom links for the meditations and healings you choose. तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए अभी इस वेबिनार के थ्रू चूज करने का. एक हमारी पार्टिसिपेंट्स पूछ रही थी कि till what time. So this link will be open for just 2 hours from now, and after 2 hours this link will be closed. So register yourself as soon as possible, because You this guys can do it offer is, now if if you're planning to, then why just delay. why wait, just register yourself, because as it is a fundraiser. और जैसे कि हमारे all the collection is going to some NGOs and for survivors, for different physical health issue survivors and everything. So this is the fundraiser program. Somebody is asking if you can get a recorded video. So yeah, so Soul Setu has put this thing already, that if you register you will get the recording as well on your mail. Right. So if you register for the Dhyan Utsav event, then you will get the recording of this meditation that we just did. So I think we are good to go. If anybody has any question, you can ask us. And wait मत कीजिए, register कीजिए, because ये 555 का offer जल्दी से फिर मिलने वाला नहीं है. And it is a very very nominal amount which we are giving as a fundraiser, so that more and more people can join us for this meditation event. Absolutely. So if you have any questions, I'm here for like 2-3 more minutes, and then we can just say each other a very beautiful good night. Yes. You So can somebody's asking, can I repeat what are the things covered in 3 hours? So I don't know what exactly you want to mean. So I guess what Shekhar ji is asking is that what you will get in 3 hours. So there are 1 hour each. हर एक घंटे के अलग अलग फैसिलिटेटर्स हैं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक. तो उस 555 के अमाउंट में आपको 3 मेडिटेशंस मिलेंगी और 2 हीलिंग्स मिलेंगी. सो अगर आप 3 घंटे में पूछ रहे हैं आपको क्या मिलेगा, आपको 3 अलग अलग फैसिलिटेटर्स अपना सेशन देंगे. कौन से सेशंस आपको लेने हैं ये आपकी चॉइस है. soulsetu.com पे आप अपनी टिकट को बुक करवाते हुए ये सब वहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं. Right. So it's a very very simple method जिसमें आपको क्लिक करने पे पहले meditations का पूरा शेड्यूल दिखेगा.
all the facilitators who are doing the meditation, and their time slot is there. You have to click, choose 3 meditation, and then you go to the next page. There are healing schedule, and all the timings are there. So you have to choose 2 healings, and then third page is divination tool. You can choose 1 divination tool, and then you can, there is a payment gateway. Yeah. So you can pay there, right there, and on the website. Somebody is asking a very nice question कि सर नॉलेज नहीं हो तो कैसे सिलेक्ट करें? सो देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है. आप सेशंस के नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उस सेशन में होगा क्या. आप नामों पर फिर ना जाएं. अगर आपको नहीं पता है, जिनको पता है वो तो ऑटोमेटिकली दे कैन चूज. तो 1, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए. आप सभी सबको पढ़िए, अपने समय को देखिए कि आप किस समय फ्री हैं. एक तो वो वाले स्लॉट्स कर लीजिए. फॉर एग्जांपल, आप सुबह जल्दी उठते हैं और फ्री होते हैं तो 7 बजे वाला. 8 बजे फ्री हैं तो वो वाला. खाने के बाद लंच के टाइम फ्री है तो मेरा 3 से 4 बजे है. इसी तरीके से 7 बजे तक चलेगा. अपना टाइम देख लीजिए. फिर देखिए कि आपको कौन सी डिस्क्रिप्शन इंटरेस्ट करती है. तीसरा, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. आपके अंदर से अपने आप लगेगा यार ये वाला करते हैं, तो बस आप वो वाला कर लीजिए. राइट? Absolutely. Thank you, Ujjwal. It was so wonderful the way you explained it. And thank you everyone for joining us, and wish you a very, very good night. And thank you, Ujjwal. It was wonderful, wonderful session as always. Really admire you and the way you just do the things miraculously. Thank you everybody. I'm so grateful to have been able to offer you something nice. Good Thank night. Have a good day and a beautiful life ahead. Bye bye. थोड़ी सी ये लिंक सिर्फ अभी खुला है थोड़ी देर के लिए आपके लिए. So register yourself. Till then, goodbye. See you on 20th, everyone. Take care.